Hello students, let's start new video lecture for the chapter Breathing and Exchange of Gases. So students, now our topic is transport of carbon dioxide. As you already know that we have discussed transport of oxygen. Now in case of carbon dioxide student, the transport is much easier than the oxygen due to high solubility of carbon dioxide in water. Carbon dioxide की solubility water में oxygen से ज़्यादा है, that is about 20 times that of oxygen. So transport of carbon dioxide is much easier than of oxygen. Each deciliter of blood carries, students, about 3.7 ml of carbon dioxide. 1 deciliter is equal to 100 ml. So 100 ml of blood carries about 3.7 ml of carbon dioxide. Student, carbon dioxide is transported in blood in three ways. First is 7% dissolved in plasma like the oxygen. In case of oxygen, 3% was dissolved in soluble form. Here, because solubility of the carbon dioxide is more, therefore 7% is in dissolved form. 23% bound to hemoglobin as carb amino hemoglobin. In case of oxygen, it is oxyhemoglobin. In case of carbon dioxide, it combines with the amine group of hemoglobin to form कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. सो पता होना चाहिए कि क्या नाम है उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के मिलने से बनेगा. एंड रेस्ट स्टूडेंट 70% इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन in the plasma following an enzyme catalyzed reaction in red blood cell. 70% जो होता है that as biocarbonate ion in the plasma following an enzyme catalyzed reaction जो रेड ब्लड सेल के अंदर होता है. एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ये एंजाइम के द्वारा ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है. तो स्टूडेंट, आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम. एक एंजाइम का नाम है, इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू. एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, स्पेशली बाइकार्बोनेट आयन की. तो उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आरबीसी में और थोड़ा सा पाया जाता है ये प्लाज्मा के अंदर. सो दिस एंजाइम स्टूडेंट फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन. ये क्या करता है, आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके क्या करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिक एसिड में. और फिर कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक हो जाता है इनटू बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में. ये रिएक्शन स्टूडेंट आरबीसी में तो होती है मेनली, क्योंकि जहां पर एंजाइम होगा वहीं पर रिएक्शन होगी. थोड़ी सी ये रिएक्शन, क्योंकि थोड़ा सा एंजाइम प्लाज्मा के अंदर भी होता है तो वहां भी होती है. तो व्हाट हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में क्या बना, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड फिर फाइनली ब्रेक करके दैट इज बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन में. तो इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं कि तीन मोड है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन के. 7% in dissolved form through plasma, 23% by combining with hemoglobin like oxygen, and 70% as biocarbonate ion in the plasma following an enzyme catalyzed reaction in red blood cells. और उस एंजाइम का नाम क्या है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. Now students, let's take the help of diagram to understand transport of carbon dioxide. So as already I have said student that carbon dioxide is transported by three main ways. So this is carbon dioxide student that is present in the tissues. Now from the tissues carbon dioxide is comes into the blood, and once carbon dioxide is entered into the blood it becomes deoxygenated, that is venous blood. So some carbon dioxide is transported in dissolved form, that is 7%. 7% carbon dioxide is transported in dissolved form. Then some carbon dioxide, that is about 23%, that what is doing, it is entering into the RBC and combining with hemoglobin to form carb amine hemoglobin. So 23% is transported in the form of hemoglobin. बाकी 70% क्या होगा, that carbon dioxide combined with water in the RBC in the presence of which enzyme, that is CA. CA means carbonic anhydrase to form carbonic acid, or carbonic acid then finally break into bicarbonate ion, that is HCO3 minus and hydrogen ion. HCO3 ion, that is bicarbonate ion,
Student then comes out into the plasma, and then in the form of bicarbonate ion, this carbon dioxide is transported to the alveoli. Here student, see, two ions are formed when this carbonic acid is broken, bicarbonate and hydrogen ion. So स्टूडेंट जब हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं तो आयनिक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, खास करके हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनने से क्या होगा, पीएच कैन गेट डिक्रीज। सो पीएच भी मेंटेन रखना है ब्लड का, तो क्या होता है, कुछ हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। हीमोग्लोबिन में एक खासियत है, इट एक्ट एज अ बफर। बफर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो पीएच को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इमीडिएटली हीमोग्लोबिन उन हाइड्रोजन आयंस को अपने साथ मिला लेते हैं ताकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ने से रोका जा सके या पीएच को कम होने से रोका जा सके। तो ये कुछ जो चेंजेस आती हैं ये सिर्फ इसलिए ताकि पीएच को रेगुलेट किया जा सके ब्लड के। अब यहाँ पर जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाएंगे स्टूडेंट, तो क्लोराइड आयन अंदर आएंगे। ये जो क्लोराइड अंदर आते हैं आयन बाइकार्बोनेट आयन के बाहर जाने पे, इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो क्लोराइड शिफ्ट कब देखने को मिलेगा, जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनेगा और बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाएंगे, एकदम से क्लोराइड आयन अंदर आएंगे। सो इन क्लोराइड आयन के अंदर आने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज क्लोराइड शिफ्ट। अब स्टूडेंट जब ट्रांसपोर्ट होगा ये ब्लड लंग्स के लेवल पे, अब बिल्कुल उल्टा होंगे सारे प्रोसेस। क्या उल्टा कैसे होंगे, जैसे अगर कार्बामीन हीमोग्लोबिन की बात करें तो क्या हुआ, जो 23% वाला पार्ट है हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग हो गए, एंड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में आ गया और प्लाज्मा से फिर एल्वेलाई से होती है बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब स्टूडेंट अगर बात करें उन बाइकार्बोनेट आयन की जो प्लाज्मा के थ्रू आए हैं, वो दोबारा आप क्या कर रहे हैं, आरबीसी के अंदर आएंगे। और आरबीसी के अंदर आएंगे तो जो हीमोग्लोबिन अपने साथ हाइड्रोजन आयन जोड़े थे, यहाँ पर ध्यान होगा आपको, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन अब हीमोग्लोबिन रिलीज कर देगा और ये हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन करेंगे और दोबारा से क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। क्यों, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है स्टूडेंट। पहले बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बनते हैं, फिर लंग्स के लेवल पे प्रोसेस उल्टा है, फिर ये कार्बोनिक एसिड स्टूडेंट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड फिर फाइनली जब बन जाएगा तो ये प्लाज्मा में आ जाएगा और प्लाज्मा से फिर फाइनली एल्वेलाई में चला जाएगा और एल्वेलाई से इट विल मूव इनटू द एटमॉस्फेयर। सो एग्जैक्टली हमें क्या समझना है कि जो प्रोसेसेस टिश्यू लेवल पे आरबीसी के अंदर हो रहे हैं या ब्लड में हो रहे हैं, उनके बिल्कुल उल्टा रिएक्शन होते हैं एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई। कैसे, एट द लेवल ऑफ टिश्यू, जो ब्लड था, आरबीसी थे, उनमें कार्बोनिक एसिड बने, फिर बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बने, बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में चले गए, फिर प्लाज्मा के थ्रू जब ये एल्वेलाई के लेवल पे पहुंचे तो फिर से बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करे, फिर कार्बोनिक एसिड बना, फिर कार्बोनिक एसिड फिर फाइनली ब्रेक करा हाइड्रोजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई से बाहर चली गई। सो स्टूडेंट दिस इज बेसिकली द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 7% इन सॉल्युबल फॉर्म, 23% by combining with hemoglobin, and major part that is 70% in the form of bicarbonate ion। और bicarbonate ion बनने में जिन एंजाइम का योगदान है वो कौन से एंजाइम है, that is कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो स्टूडेंट थ्योरी पार्ट देखते हैं अब। At the tissue site where partial pressure of carbon dioxide is very high due to the catabolism, so what will happen? In the RBC and plasma, there is formation of, first of all, carbonic acid, and carbonic acid will then further broken down into bicarbonate ion and hydrogen ion। और एल्वियुलर साइड पे लंग्स के लेवल पे क्या होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो वहां पर ये दोनों आयन फिर से कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। And finally, carbon dioxide is trapped as bicarbonate ion at the tissue site and transported to the alveoli and released out as carbon dioxide। टिश्यू लेवल पे देखें तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रैप करी हमने, फिर ये ट्रांसपोर्ट करी एल्वेलाई को और वहां पर रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम बात कर रहे हैं 70% जो मेजर पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। So next student, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli। Next student,
It's a very important point now to maintain electrostatic neutrality of the plasma. हमने देखा था स्टूडेंट डायग्राम में कि बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाने से क्या होता है, आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, उस पीएच की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए कुछ क्लोराइड आयन अंदर आए थे प्लाज्मा में, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। मकसद क्या है उसका, टू मेंटेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी। तो यहाँ क्या लिखा है, टू मेंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी ऑफ प्लाज्मा मैनी क्लोराइड आयन diffuse from plasma into RBC and carbonate ion from RBC to plasma. कार्बोनेट आयन RBC से प्लाज्मा में जा रहे हैं, जबकि क्लोराइड आयन जो है वो प्लाज्मा से RBC में आ रहे हैं। So chloride content of RBC increases when oxygenated blood become deoxygenated blood and it is called chloride shift. ऑक्सीजनेटेड ब्लड के मुकाबले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज क्लोराइड हैज कम फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी। सो इस शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर शिफ्ट। बिकॉज ऑफ दिस क्लोराइड कंटेंट स्टूडेंट्स, आरबीसी जो होते हैं, खास करके जो वीनस ब्लड के होते हैं, वीनस ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हैज देयरफॉर सिग्निफिकेंटली more chloride ion than the arterial blood. Arterial blood means oxygenated blood. Chloride shift के कारण ही deoxygenated blood में chloride content ज्यादा रहता है. The chloride shift occurs student very rapidly and it essentially complete in about 1 second. So chloride shift याद रखेंगे. Next student, Haldane effect. एक और इफेक्ट है जिसे हम Haldane effect कहते हैं. क्लोराइड शिफ्ट को याद रखेंगे. क्लोराइड शिफ्ट को हम हैम्बर्गर शिफ्ट भी कहते हैं। सो हाल्डन इफेक्ट में क्या है स्टूडेंट, इट इज द प्रमोशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन बाय ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिसोसिएशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का टूटना, कैसे, बाय ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो फाइनली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, इससे अगर हीमोग्लोबिन के साथ भी जुड़ा है तो फाइनली इट विल गेट सेपरेट, या बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, तो क्या होगा, फाइनली कार्बोनिक एसिड बनेंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली एल्बिलाई के थ्रू बाहर चला जाएगा। सो हाल्डन इफेक्ट इज प्रमोशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन बाय ऑक्सीजनेशन ऑफ hemoglobin. And student, it is based on the simple fact that oxyhemoglobin behaves as a strong acid and releases an excess of hydrogen ions which bind with bicarbonate ion to form carbonic acid which dissociate into water and carbon dioxide. So होता क्या स्टूडेंट हाल्डन इफेक्ट में, क्योंकि ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जुड़ जाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जुड़े होने के कारण क्या होता है, जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन आते हैं एल्बिलाई के लेवल पे, एकदम से ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या करता है, कुछ हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है और वो हाइड्रोजन आयन फिर बाइकार्बोनेट आयन के साथ जुड़ जाते हैं, क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। फिर वो कार्बोनिक एसिड फाइनली डिसोशिएट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से ऑक्सीजनेशन जो हीमोग्लोबिन की है वो फाइनली क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोशिएट कर रहे हैं, सो दैट इट कैन मूव इनटू द एल्बिलाई एंड कैन बी थ्रोन आउट। सेकेंडली स्टूडेंट, ड्यू टू इंक्रीज एसिडिटी, जो एसिडिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लूजेस द पावर टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। अगर हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के एंगल से देखें तो पहला तो बाइकार्बोनेट आयन के एंगल से देखा तो क्या हुआ, जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की एसिडिटी है उसने फाइनली कुछ हाइड्रोजन आयन डोनेट करे बाइकार्बोनेट आयन को और फिर वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और फाइनली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। अगर कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन के एंगल से देखें स्टूडेंट, तो अब ये जो एसिडिटी है यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब हीमोग्लोबिन से जुड़ने नहीं देगी। सो फाइनली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ नहीं पाएगा एंड इट इज फाइनली मूव इनटू द एल्बिलाई और एल्बिलाई से इट हैज टू मूव आउट। सो हाल्डन इफेक्ट बेसिकली क्या है, it is the promotion of carbon dioxide dissociation क्यों, by the oxygenation of hemoglobin. Next topic student, regulation of respiration. Regulation of respiration means what we will discuss in this topic, that what are the processes which are basically have a control on regulation.
So student, respiration can be regulated by two mechanisms, namely nervous mechanism, that is neural control, and chemical mechanism. जो respiration है वो न्यूरल और केमिकल दोनों के अंडर कंट्रोल की जाती है. So nervous regulation में क्या है स्टूडेंट? It include some respiratory centers, और ये respiratory centers कहाँ पाए जाते हैं? They are present in medulla oblongata. और स्टूडेंट ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स करते क्या हैं? दे डिटेक्ट्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड सेंड्स द रिक्वायर्ड सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी मसल्स. दो तरह के कंट्रोल मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन के, एक न्यूरल कंट्रोल और एक केमिकल कंट्रोल. न्यूरल कंट्रोल में क्या होता है? कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जैसे मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर, तो ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, और जैसे इन्हें लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, देन it immediately sends signals to the respiratory muscles. Respiratory muscles में क्या क्या आएंगे? डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स, तो जो फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं. रेस्पिरेटरी सेंटर स्टूडेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. रेस्पिरेटरी सेंटर्स को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है मेडुलरी सेंटर जो मेडुला के अंदर ही पाए जाते हैं, और एक है पोंटाइन सेंटर. पोंटाइन सेंटर जो होते हैं बेसिकली प्रेजेंट होते हैं पोन्स के अंदर. मेडुलरी सेंटर जो होते हैं स्टूडेंट ये दो हैं, दैट इज जो इंस्पिरेशन में प्ले करेंगे रोल, दैट इज इंस्पिरेटरी सेंटर्स, और जो एक्सपिरेशन में रोल प्ले करेंगे दैट इज एक्सपिरेटरी सेंटर. इंस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं ये मेन कंसर्न विद द इंस्पिरेशन व्हेन द क्वाइट ब्रीदिंग इज गोइंग ऑन. जब ब्रीदिंग चल रही होती है तो इंस्पिरेशन में ये अपना रोल प्ले करते हैं. एंड एक्सपिरेटरी सेंटर जो होते हैं स्टूडेंट दे आर कंसर्न ड्यूरिंग फोर्स ब्रीदिंग. जब हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस समय जो हमारी बहुत तेज ब्रीदिंग हो रही है, उस दौरान जो मेडुलरी सेंटर्स काम आएंगे वो कौन से होंगे? दैट इज एक्सपिरेटरी सेंटर्स. तो न्यूरल कंट्रोल में क्या है? मेनली हमने बात किया रेस्पिरेटरी सेंटर्स का. रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाते हैं, और दो होते हैं ये, एक इंस्पिरेटरी सेंटर और एक एक्सपिरेटरी सेंटर. इसके अलावा पोन्स के अंदर भी एक सेंटर दैट इज कॉल्ड पोंटाइन सेंटर. अब पोंटाइन सेंटर्स की अगर बात करें तो पोंटाइन सेंटर है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर. इन सेंटर्स का काम क्या होता है स्टूडेंट? देयर मेन जॉब इज टू लिमिट इंस्पिरेशन. सो पोंटाइन सेंटर अपने आप में दो सेंटर से बने, और इसका काम क्या है? मेनली लिमिट करना इंस्पिरेशन को. सो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि इट इज अंडर टू कंट्रोल, दैट इज केमिकल न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल. आगे देखते हैं थोड़ा सा केमिकल कंट्रोल कैसे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है. तो स्टूडेंट्स अगर न्यूरल कंट्रोल को डायग्राम से समझें तो मेडुलरी सेंटर are there in the medulla as well as pontine center are present in pons. pons से याद रख सकते हैं pontine center that is pons, और medullary centers क्या है? that is medulla. तो ये जो सेंटर्स होते हैं ये कुछ न्यूरल सिग्नल भेज रहे हैं मसल्स को, जो मसल रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे इंस्पिरेशन के लिए या एक्सपिरेशन के लिए, लेकिन ये सिग्नल भेजेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी. उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं ये सेंटर जो पोन्स और मेडुला में पाए जाते हैं. तो यहाँ पर देखें तो ये जो नर्व्स हैं बेसिकली ये क्या कर रही हैं? दीज नर्व सिग्नल्स ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? इंस्पिरेशन स्टार्ट होगा. तो फाइनली बट फिर भी अगर बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से दे विल सेंड सिग्नल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. नेक्स्ट स्टूडेंट केमिकल कंट्रोल में देखें तो सम कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड नियर रिदम सेंटर्स दैट इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन. कीमोसेंसिटिव एरिया दैट इज केमिकल कंट्रोल में देखें तो रिदम सेंटर के पास ही होते हैं, और ये हाईली सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को. जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं इमीडिएटली क्या होता है? देन they will send signals to the rhythm centers to make necessary arrangements in the respiratory process by which these substances can be eliminated. Student, chemosensitive chemical control में जो chemosensitive area है वो एक इतने सेंसिटिव है कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एकदम से रिदम सेंटर्स को वो सिग्नल भेजते हैं. फाइनली तो जो भी करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर थ्रो करना है, वो तो काम किसका? दैट इज रिदम सेंटर का. तो रिदम सेंटर्स को मैसेज भेजते हैं ताकि वो कोई नेसेसरी अरेंजमेंट करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर थ्रो किया जा सके. इसके अलावा स्टूडेंट सम रिसेप्टर्स आर देयर दैट आर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्च एंड
कैरोटिड आर्टरीज और एरोटिक आर्च जो है ये हार्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो इनमें भी कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं और ये रिसेप्टर क्या करते हैं स्टूडेंट, दे आल्सो रिकॉग्नाइज द चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू रिदम सेंटर्स फॉर रेमेडियल एक्शन। तो जैसे कीमोसेंसिटिव एरिया हैं जो रिदम सेंटर के पास सिचुएटेड हैं, जो सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए, ऐसे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पर नजर रखते हैं। जैसे उनको लगता है कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इमीडिएटली क्या करते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं किसको, रिदम सेंटर्स को, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, ताकि वो आगे रेमेडियल एक्शन ले सकें और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर थ्रो कर सकें। सो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में स्टूडेंट दोनों तरह के मैकेनिज्म हैं, न्यूरल कंट्रोल भी है और साथ में केमिकल कंट्रोल मैकेनिज्म इज आल्सो देयर। So now students, let's talk about some common respiratory system disorders. सबसे पहले asthma. So it is due to allergic actions to foreign particles that affect the respiratory tract. So respiratory tract से जुड़ी allergic problem है ये, that is asthma. The symptoms include coughing, wheezing and difficulty in breathing. और क्यों होते हैं? This is due to excess of mucus in the wall of respiratory tract. Second student, जो most important common respiratory disorder, that is emphysema. Emphysema में क्या होता है student? It is the inflation or abnormal distension of the bronchioles or alveolar sacs of the lungs. और क्यों होती है? This occurs due to destroying of septa between alveoli because of smoking and inhalation of other smoke. So क्या होता है student, इसमें जो alveoli के बीच में सेप्टा होते हैं जो उनको अलग करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे क्या होता है और क्यों होते हैं डिस्ट्रॉय? ड्यू टू स्मोकिंग और इनहेलेशन ऑफ अदर टाइप ऑफ स्मोकिंग। तो इससे क्या होता है फाइनली स्टूडेंट, द एक्सहेलेशन बिकम डिफिकल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है और लंग जो होते हैं वो रिमेन इन्फ्लेटेड। लंग जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाते प्रॉपर, कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे प्रॉपर तो क्या होगा, देयर इज नो प्रॉपर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो याद रखेंगे एम्फीसीमा क्या, इट इज अ इन्फ्लेशन और एबनॉर्मल डिस्टेंशन, मतलब लंग्स जो हैं वो फूले हुए रहेंगे, वो कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपरली थ्रो नहीं कर पाएंगे। और होता क्या मेन कारण, दैट इज स्मोकिंग। सो समटाइम कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मोकिंग से होने वाला जो डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसका नाम बताएं, तो दैट इज एम्फीसीमा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कुछ प्रोफेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं, कुछ काम के साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे कुछ लोग ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ट्रिगर करते हैं, तो उससे क्या होता है उनके अंदर जो बीमारियां प्रोड्यूस होती हैं, दैट आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सो इट अकर्स ड्यू टू ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल, लोगों के काम धंधे के कारण होता है, एंड दिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ गैसेस, फ्यूम्स और डस्ट प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ वर्कप्लेस। वर्कप्लेस में जो गैसेस रहती हैं, पॉइजनस फ्यूम्स, उनके कारण होते हैं। और ये जो मेन पॉइजनस सब्सटेंसेस इनमें क्या क्या है इंक्लूडेड, दैट इज सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ सिलिका एंड एस्बेस्टोस। तो द सिम्टम क्या रहते हैं स्टूडेंट इसमें, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग दैट इज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। सो रहता क्या इसमें, सिम्टम क्या इंक्लूड करते हैं, प्रोलिफरेशन हो जाती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग, जिसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाती है लंग्स में। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं, दीज आर ड्यू टू द ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट में बात करेंगे निमोनिया। निमोनिया इज एक्यूट इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स ड्यू टू बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के कारण ये प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई जो होते हैं दे बिकम acutely inflamed and most air space of alveoli is filled with the fluid। बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है एल्वियोलाई के बीच में, तो फाइनली क्या होता है, एल्वियोलाई में इतनी सारी इन्फेक्शन हो जाती है कि वो प्रॉपरली फिर फाइनली गैस एक्सचेंज करने में कैपेबल नहीं होते। तो फिल्ड विद फ्लूइड एंड डेड वाइट ब्लड कार्पेसल्स लिमिटिंग गैसियस एक्सचेंज। सो जब फ्लूइड बहुत सारा हो जाएगा तो फाइनली वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, दीज आर सम most important disorders of respiratory
system. So with this student, we have completed our today's lecture. Even we have also completed the chapter. So in this lecture, what we had discussed, student, we have started with transportation of carbon dioxide. In transportation of carbon dioxide, we had discussed about the process as well as chloride shift and Halden effect. Then we have discussed about the regulation of respiration, and lastly we have discussed about some disorders of respiratory system. So with this student, this video lecture is completed. The chapter is also completed. Take care. Thanks.